عرض میں کرا تو ضیاء الرحمان فاروقی صاحب یا حق نواز جنگوی صاحب کی ملے علامہ حق نواز جنگوی صاحب کی یا انہوں دا ٹائم دیکھیا ہوئے تو جی میں ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن سنیا بڑا ہے، سنیا بڑا ہے. میرا تعلق ہی یہ عرض یہ ہے کہ شاہ صاحب ہوں آ کے خود دسن کے بسم اللہ شاہ صاحب السلام علیکم. میں گجرات تے تو ہوں تو میرا تعلق بھی الحمدللہ سپاہ نال ہے. ہاں بالکل او سپا او ہے جڑی پنڈی شروع ہوئی اور بڑی چھوٹی جی میٹنگ بہرحال وہ ایک علیحدہ گل ہے. یہ 29 شاہ اگست صاحب شروع خود ہوئی آن جی. کے دسن ایک عرض بھجن سنن. نہیں شروع نہیں ہوئی، ہر ایک جگہ تے اپنی اپنی شروع ہوندی ہے نا. جا تے تقابل ادیان جڑا ہے نا، تقابل مسالک معذرت تے مفتی صاحب ہن اس تے گل کرن گے. جی ٹھیک شاہ ہے، ماشاء صاحب اللہ، السلام علیکم جی. شکریہ. تے مسلک ساڈا ختم نبوت ہے. جی مفتی صاحب جی. وعلیکم السلام. عامر نذیر بھائی دی یہ پوسٹ لگی ہے تے یہ نہیں مینوں سمجھ آئی عامر بھائی ہے کی یہ پوسٹ جیڑی ہے نا وہ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੋਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਟicker ਮਿਰਜ਼ਾਈयों के सवालात. اچھا مرزائیوں کے سوالات. اچھا کیا آپ کون سے آپ کا کیا تعارف ہے؟ اپنا تعارف کرائیں. جدو جاؤ نا مرزائی دی براڑ دے اے سوال ہوندا ہے اپنا تعارف کرائیں. آپ کون سے مسلمان ہیں؟ وہ کہندا میں مسلمان. کون سے مسلمان ہیں؟ وہابی، سنی، دیوبندی، شیعہ، کون سے مسلمان ہیں آپ؟ میں کہ مسلمان تھوڑا جا پکا لین، تھوڑا جا انہاں سوالاں دے اتنے غور کرن. جدو جاندے نے تو کوئی مڑے نے نا جڑے 20-25 سالاں دے نوجوان وہ کنفیوز جے ہو جاندے نے دوں تروں گل. ایک تے ہے مسلک والے سوال تے جا کے جدو وہ پوچھدا کون سے مسلمان، وہ بیچارہ اگوں پیا آندا ہے او یار میں مسلمان ہی ہاں، تو میرے تلاشی لینی ہے میں کیڑا مسلمان. ایک تے اس گل تو منڈے کنفیوز ہوندے نے تے ایک ختم نبوت دے سوال تو کنفیوز ہوندے نے. اچھا نبی پاک نو آخری نبی مننا ہے؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام دا بھی آونا مننا ہے تے پھر نبی پاک کنج آخری نبی ہوئے؟ منڈا پیڑا پی جاندا ہے. اے دو گلاں نے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ اسلام ایک الگ تو دین ہے اور ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੂਛ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀਆਂ, ਮੁਸਲਮ ਵਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ੀਆਵਾਂ. ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. 1400 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਹਰ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ وابی جے تے میں مسلم شیعہ جے. یہ آپ کو ملے گا تو فقط 2 بندوں کے اندر ہی ملتا ہے آج کل کے دور کے اندر. اور بھی ہوں تو ان کا مجھے پتہ نہیں ہے. وہ ایک مرزا سینئر غلام قادیانی کا ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں مسلم احمدی، اور انجینئر مرزا جونیئر جیلمی کا ملتا ہے جی مسلم علمی کتابی. اور آج کل انہوں نے مزید اور بھی پوچھلیں ساتھ لگا دی ہیں، جسٹ مسلم تے اونلی مسلم تے پیور مسلم، حقیقی مسلم، سچا مسلم. تو یہ ساری جو پوچھلیں ساتھ لگائی ہیں نا، ان پوچھلوں کا دین اسلام کے اندر تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے مسلمان بھائیوں کو، جمی مسلمان بھائیوں کو قادیانیوں کی اور مرزائیوں کی ان سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ یہ کرتے کیا ہیں. ہمارے جو
मकातबे फिक्र हैं, इनको मैं मकतबे फिक्र कहता हूं और समझता हूं, इनको फिरका नहीं समझता। मकतबे फिक्र यानी सोच फिक्र का दायराकार अलग है। तो जब सोच और फिक्र के दायराकार अलग हैं तो इसलिए इनको एक मकतबे फिक्र से ताबीर किया जाता है कि ये मकतबे फिक्र वहाबिया है, मकतबे फिक्र देवबंदिया है, मकतबे फिक्र सुन्नी बरेलविया है, ठीक है, या मकतबे फिक्र शिया है। तो ये मकातिबे फिक्र हैं, ये फिरके नहीं है। तो बहरहाल कादियानियों की बराडों के ऊपर जाएं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हाँ दसो जी तुहाडा फिरका केड़ा। और मरजइयों की यानी मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वालों की बराडों पर जाएं तो सबसे पहला सवाल होता है कि हाँ रफाई दैन करते हो कि नहीं, बताओ रफाई दैन करते हो कि। तो ये भाई इसका इस्लाम में कोई तल्लुक वास्ता नहीं है इन चीजों का या इन सवालात का। हमारे खत्मे नबूवत की बराडों के ऊपर आप देखें कभी नहीं ऐसी कोई, हम टू दी पॉइंट रहते हैं और अपने मतलब की बात करते हैं, कभी नहीं हमें कोई। अब यहाँ पे जो बैठे हैं हाजरीन, इनके अंदर देवबंदी भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, वहाबी भी हैं, सारे ही हैं, सारे बैठे हैं। अरसा दराज से हम काम कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई हमारी कोई आपस में कोई मामला तो हुई नहीं, ना ही कभी किसी ने किसी से पूछा, किसी ने कभी नहीं किसी से पूछा हाँ जी दसो जी तुहाडा की फिरका ते कौन हो तुसी सुन्नी मुस्लिम हो, वहाबी मुस्लिम हो, शिया मुस्लिम हो, कभी हुआ ही नहीं, ऐसा ही नहीं हुआ ही नहीं। तो जी बात कंप्लीट हो गई, और मजीद कोई बात आगे करना चाहें तो। असल में ना ये ही मुसलमानों को गुमराह करने की एक राह है, उनको धक्का देने की राह है कि आप कौन से मुसलमान हैं। हालांकि जो शिया हैं वो भी आपको जब गैर मुस्लिम के सामने जाएंगे वो पूछेंगे, वो कहेंगे मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं? वो मुसलमान हैं। आपको गैर मुस्लिम तो पूछता ही नहीं ना कौन से मुसलमान हैं। दुनिया में सिर्फ यही एक बंदा है मेरे ख्याल से, तो मिर्ज़ाइयत पहले नंबर पर है, और आप बता रहे हैं कि इंजीनियर भी लोगों के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोगों से इस तरह के सवाल या लोगों पर लेबल लगाता है नहीं लगाता। लेकिन बहरहाल इस्लाम जो है, इस्लाम किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है, इस तरह की तो कोई पहचान है नहीं। और मैं आपको मज़े की बात एक लतीफ़े के अंदाज में सुनाऊं कि एक बच्ची है, वो मेरी तो बेटियों की तरह है, वो इंशाल्लाह अनकरीब इस्लाम कबूल करने वाले हैं पूरी फैमिली। तो वो मुझसे पूछने लगे पिछले हफ्ते कि मैं कौन से इस्लाम में जाऊंगी। मुझसे पूछा जाता है कि भाई अगर तुम हमें छोड़ दोगी, मिर्ज़ाइयत को छोड़ दोगी, तो तुम कौन से फ़िरके में जाओगी। कहती है ये मुझसे सवाल हुआ है, तो मुझे कोई बताएं कि मैं कौन सा फ़िरका इख्तियार करूंगी। मैंने कहा बेटा मेरा अपना फ़िरका कोई नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कौन से फ़िरके में जाना है, मुझे तो खुद नहीं पता मेरा कौन सा फ़िरका है। इस्लाम कबूल करने के लिए आपको किसी फ़िरके की ज़रूरत नहीं है, आपको इस्लाम की ज़रूरत है। आप इस्लाम कबूल कर लेंगी, उसके बाद अगर आपको किसी आलम दीन की तहकीक बेहतर लगी है दूसरे आलम दीन से, आप उसकी तहकीक को तरजीह दें। उसी आलम दीन के बरक्स अगर किसी दूसरे आलम दीन की तहकीक आपको किसी दूसरे मामले में अच्छी लगी है, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप उसकी देख लें। लेकिन कोई बंदा भी ऐसा नहीं है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के बाद जिस पर ईमान लाना या उसकी हर बात को दुरुस्त मानना ये फ़र्ज़ करार दिया हो इस्लाम ने। और हर बंदे से इख्तलाफ किया जा सकता है, हर बंदे के अंदर छोटी मोटी गलतियां होती भी हैं। अल्लाह ताला का ये अपना निज़ाम है कि उसने बंदों से ऐसी गलतियां ख़ास तसर्रुफ़ इलाही से ऐसी करवा दी हैं ताकि लोगों को ठोकर ना लगे कि ये बंदा पता नहीं मासूम है या इससे गलती हो ही नहीं सकती। हर इंसान से छोटी मोटी गलतियां हुई हैं। बड़े बड़े उलमा, मेरा मतलब है उलमा से जब गलती छोटी मोटी हो जाती है ना तो लोगों का ज़हन साफ़ हो जाता है, वरना लोग कई दफ़ा अंधी अकीदत में मुब्तला हो जाते हैं ना।
کہ یہ ہمارے جو حضرت صاحب ہیں یا مولانا ہیں یہ غلطی کر نہیں سکتے. کئی دفعہ زیادہ عقیدت بندے کو اس حد تک بھی لے جاتی ہے. تو اگر تصرف الہی سے ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے نا تو وہ لوگوں کے عقیدے کو اور اس اندھی عقیدت کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھ لو یہ بندہ ہی ہے, اس سے یہ غلطی ہو گئی اور اس نے خود رجوع کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی. معذرت کوئی کال آ رہی تھی بیچ میں. آواز آ رہی ہے میری کہ میوٹ ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اب آپ کا میری مائک بند آواز ہے آ رہی لیکن ہے؟ اچھا نہیں ایسے مجھے بھی لگا کہ مائک میرا میوٹ ہے لیکن آواز نیچے اوپن نظر آ رہا تھا, اوپر والا. وہ کال آ گئی تھی بیچ میں کسی کی. بس اتنی میں نے بات کہنی تھی کہ یہ گمراہی کی طرف بندے کو دھکیلنے والی بات ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ مسلمانوں کو اس طرف دھکا دیتے ہیں. اب بچے نوجوان وہ سنی سنائی بات کر دیتے ہیں, ہاں جی میں سنی ہوں جی. کئی بچے, ایک دو بچے کو میں نے ایسے بھی دیکھا وہ 20-25 سال کے, میں تو ان کو بچہ ہی مانتا ہوں, معصوم ہی مانتا ہوں, ان کو بھی اتنا شعور نہیں ہوتا. تو وہ کوئی بچہ تھا, وہ مرزائیوں کی براڈ پہ آپ یقین جانیں گے وہ جو ہے نا نادر اور مسرور اور طلت 3 بیٹھے ہوتے, ان کی براڈ پہ وہ بچہ کہہ رہا تھا جی میں اہل تشیع سے ہوں. اچھا جی, وہ کہتا ہے اچھا بتاؤ ہاں یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں تم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو. اب وہ پتہ نہیں بچہ ملا ہوا تھا, 2 نمبر بچہ تھا یا 1 نمبر بچہ تھا, بیوقوف تھا, وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں ان کو کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طلت جناب آگے سے بڑا ڈرامہ کر رہا تھا. وہ طلت میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں, یہ ملک طلت کی بات کر رہا ہوں, وہ جو نادر کی براڈ پہ ہوتا. کہہ رہا ہے اچھا اصل میں ہمارا اور آپ کا یہ اختلاف ہے نا, آپ ہمارے اہل سنت کے ساتھ اس بات پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ آپ ہمارے خلفائے ثلاثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. یہ مسئلہ ہے نا ہمارا اور آپ کا. تو اس طرح کا وہ ڈرامہ کر رہا تھا. اب پتہ نہیں وہ بچہ جیسے میں نے کہا کہ 2 نمبر تھا یا جان بوجھ کر 2 نمبر بنا ہوا تھا, لیکن یہ دھکیلتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو اس طرح کے سوالات کر کے اس راہ پہ دھکیلتے ہیں تاکہ پھر بچے جہاں آپ جاتے ہیں تو ان سوالوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے اور ان کے ایسے جواب دیا کریں اور اس گمراہی سے بچیں. جی مفتی صاحب. اچھا یہ پرنٹ آؤٹ کچھ میں ضروری اخبارات کے نکال رہا تھا, تو یہ ابھی کوئی ایک پرنٹ نکال ہے. الفضل اخبار میرے سامنے ہے اور یہ شمارہ ہے الفضل کا 1 دسمبر 1948. 1 دسمبر 1948 کا شمارہ ہے, یعنی پاکستان بننے کے 1 سال بعد. اب یہاں پر یہ دیکھیے ذرا صفحہ نمبر 2 کے اوپر یہ ہائی لائٹ عبارت میں نے کی ہے, اس کو ذرا آپ کیمرے کے اندر دیکھ لیں اگر نظر آ جائے تو. الٹی دکھتی ہے نا جب آپ کیمرے کے سامنے کرتے ہیں نا, تو وہ لکھائی جو ہے نا کوئی وہ بات نہیں, وہ حوالہ دے دیے نا, جس کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ پھر اوریجنل جا کے دیکھ لے گا خود ہی. اچھا یہاں پہ دیکھیے کہ ہم کئی دفعہ ثابت کر چکے ہیں اور آج کل قادیانیوں کا جو مربی ہے میر سلیم مائنڈ روسٹر, وہ بھی اپنی اس نے پوسٹ لگائی ہوتی ہے, پوسٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, اوپر تصویر ہوتی ہے مرد قادیانی کی اور نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور کریں یہ لکھا ہوگا. اور ایک دفعہ جا کے میں نے پوچھ بھی لیا اس سے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے, تو کہنے لگا کہ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. تو اس چیز کا ثبوت بہت سے ثبوت ہیں, ان میں سے ایک ثبوت میں اور لے کے آیا ہوں. یہاں پہ چندہ کی تحریک کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے جی, سنیے گا. سیدنا حضرت امیر المومنین یدہ اللہ نے خود اپنی طرف سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود, دیکھ لیں, اور آگے لکھا ہے سیدہ ام رفیع مرحومہ,
سید لکھا ہے بھائی یہاں، ویسے سیدہ ہونا چاہیے. سید ام طاہر مرحومہ، سیدہ امات الحی صاحبہ مرحومہ، اور سیدہ امات الودود صاحبہ مرحومہ کی طرف سے دفتر اول کے سال رواں سے لے کر اب تک چندہ دیتے آ رہے ہیں. سن لیا آپ نے؟ ہمیں بات چندے کی یہاں پہ نہیں کرنی، بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو ان کا خلیفہ تھا نا اس ٹائم، خلیفہ زانی جو تھا، اس نے کیا کیا کہ یہ جتنے بھی مر گئے تھے نا ان کے وہ کہتا ہے کہ میں چندے دے رہا ہوں مرے ہوئوں کے. جہاں پہ نام آیا نا اس کے باپ کا یعنی مرزا غلام قادیانی کا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لکھا ہوا ہے. یہ پیلی عبارت آپ اگر پڑھی جائے تو پڑھ لیں. کیمرے میں پتہ نہیں دکھائی دیا کہ نہیں، حوالہ میں دوبارہ دے دیتا ہوں. آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے رسائل اور اخبارات والے سیشن میں جا کے دیکھ لیں. الفضل نام انہوں نے 12 روزنامہ دیا تھا، لیکن یہ نکالتے کبھی کبھی تھے، کوئی ہفتے میں ایک نکال دیتے تھے. شروع کے دنوں میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنا تھا. اور ایک اور حوالہ یہاں پر میں دیتا جاؤں، روزنامہ الفضل، اور 16 مئی 1914 کا یہ شمارہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں. اور اس کا یہ پیج نمبر 5 ہے اور پہلا کالم، پیج نمبر 5 پہلا کالم، اور یہ ہائی لائٹ عبارت. اب یہاں پہ لکھا کیا ہے وہ سن لیں. حضرت اقدس مسیح موتر علیہ شلوار کا تھا، یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے یہ لوریوں کے لیے لکھی ہے. قادیانی لوری بھی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، اور یہ جو مسروری گروپ ہے، یعنی پہلے تو یہ بشیری گروپ تھا، آج کل مسروری بنا ہے. تو یہ جو بشیری گروپ تھا تو یہ ان کو کافر کہتے تھے اور لوری ان کو کافر کہتے تھے. یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ میں عبارت شروع سے پڑھتا ہوں. خواجہ کمال الدین صاحب ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے کفر کا مسئلہ چھیڑ کر خدا کی، یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے نا، خواجہ کمال الدین ان کو کافر کہہ رہا تھا کہ یہ تم لوگ کافر ہو، تو کفر کا مسئلہ چھیڑ کر خدا کی پاک جماعت کے 2 ٹکڑے کر دیے. ورنہ اس سے پہلے تمام احمدی بھی استثناء عبدالحکیم خان اسی ایمان پر قائم تھے جو حضرت اقدس مسیح موتر علیہ شلوار کا تھا، یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. اور دعوت پہنچنے کی تشریح بھی آپ نے حقیقت الوحی میں خوب کر دی ہے. معمور آسمانی نشانوں اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اپنا سچا ہونا ثابت کر دے. صفحہ 65. اور خدا اپنے نبیوں اور مرسلوں کو اس قدر مہلت دیتا ہے کہ دنیا کے بہت سے حصہ میں اس کا نام پھیل جاتا ہے اور ان کے دعوے سے لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، اور پھر آسمانی نشانوں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ
अच्छा, ये सारी फिर आगे गुफ्तगू है। तो ये आपस में एक दूसरे को काफर काफर कह रहे हैं, याद रखिएगा। आज कादियानी हमें कहते हैं, ओ कादियानियों तुम किस मुंह से हमें कहते हो? पहले अपनी मंजी थले ते डंगोरी फेरो। तुसी तो एक दूजे नूं काफर काफर कहंदे रहे हो और कहंदे हो। जी आमिर भाई, इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? मेरा ख्याल है मेरे कुछ अर्ज करने से पहले जो मौलवी नईम आया ना ऊपर, कोई गल ਉਹਦੇ ਕੋਲ है, कोई करेगा गल होरियां दे बारे जो गल हुंदी है ना, मौलवी नईम जरूर कोई ना कोई बीच में दखल देते हैं। हाँ जी मौलवी साहब, लोहरी इनको काफर कहते थे। यहाँ पर ये अपने उनको शाह काफर- साहब से इख्तलाफ करता हूँ। हैं? मैं शाह साहब से इख्तलाफ करता हूँ यहाँ पर। करो हवाला। ये जो ख्वाजा कमालुद्दीन की तरफ कुफर की निस्बत है ना, ये मसला कुफर वो है जो मिर्जा कादियानी के इनकार से काफर होते हैं। ये वो मसला है इनके दरमियान, एक दूसरे को ये काफर नहीं कह रहे। इस हवाले में मसला है कुफर जो इनके दरमियान। चंगा किता ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौलवी थले ला दो ਜਿਹੜਾ इख्तलाफ करे, थले ला दो। नहीं, असल बात ये है मुफ्ती साहब के ये झूठ लिखा हुआ है कि खुदा की जमात के। नहीं ममान भाई, आओ भाई, दोबारा ਇਹਦੇ ਤੇ थोड़ी जी गुफ्तगू होनी चाहिए है। ले मैं कह रहा हूँ कि ये गलत बात उन्होंने लिखी हुई है कि खुदा की जमात को इस तकफीर के मसले ने लैदा किया है। तकफीर के मसले ने नहीं लैदा किया, उस 2 नंबर खलीफा की चॉइस ने लैदा किया था। जब इन्होंने उसको चुना था, लैदा तो उस दिन हो गए थे। तकफीर का मसला, नबूवत का मसला और मुस्लिम मऊद का मसला, ये तीनों मसाइल इनके दरमियान में वक्त के साथ साथ बाद में पैदा हुए हैं। तो ये झूठ बोला गया है कि तकफीर की वजह से हमारे 2 टुकड़े हो गए हैं। 2 टुकड़े तो उस 2 नंबर खलीफा की चॉइस की वजह से हुए हैं। जो इन्होंने चुना था वो इस काबिल नहीं था। हकीकतन भी अगर देखा जाए, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को वो पीछे अपना खलीफा बना के मिर्जा कादियानी जाता था, हक उसका था। ये इन्होंने जो कुछ बनाया था वो आपको पता ही है, घर के अंदर ही जो खिचड़ी कुचड़ी पकी थी, तो उन्होंने इसको खलीफा बनाया। इख्तलाफ तो उस बात से हुआ था। ये अकायद की इनके दरमियान जो बातें हुई है ना, वो तकफीर के मसले पर इनका अकीदे का इख्तलाफ था दोनों के दरमियान। और मुस्लिम मऊद के मसले पर इख्तलाफ हुआ जब 1944 में उसने दावा किया मुस्लिम मऊद होने का। और ये तीसरा मसला कौन सा था, नबूवत का मसला, कि ये तो 1914 में ही छिड़ गया मसला, नबूवत वाला मसला, क्योंकि वो तकफीर से ही मसला छिड़ा कि तकफीर तो उसकी होती जो नबी का इनकार को। उन्होंने कहा हम तो नबी मानते हैं, तो उसने कहा हम तो नबी नहीं मानते। वो तो उन्होंने तो जिल्ली बरूजी रंग में दावा किया था, नबूवत, हकीकी नबूवत का तो दावा ही नहीं था उनका। ऐसे करके इनके दरमियान बात शुरू हुई और होते होते बात दूर तक निकल गई। लेकिन बहरहाल ये दुरुस्त है कि इन द एंड कादियानियों के नहीं मवान भाई भी आ गए ने। मैं देना कमालुद्दीन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ख्वाजा कमालुद्दीन ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਵੋ। ख्वाजा कमालुद्दीन वकील ख्वाजा था। कमालुद्दीन मिर्जा कादियानी दस्ते राह से है ना जी शाह साहब, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾ ये ਰਹੇ ਸੀ। दस्ते राह से है ना। ਹਾਂਜੀ ये वही ख्वाजा कमालुद्दीन ने 500 जुर्माना पार के जान छुड़ाई मिर्जा कादियानी ने आत्मा राम की अदालत से। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ख्वाजा कमालुद्दीन है, पूरी गल सुनो ना। वो ख्वाजा कमालुद्दीन है, इस मिर्जा कादियानी ने इस्लामी फिलासफी का मजमून जो आख्या सी, ये ना पढ़े पढ़ने ने काबिल नहीं। ये वो ख्वाजा कमालुद्दीन है जरा इन्होंने कमेटी बनी ना, उसका रोका ने मिर्जा कादियानी जो वसीयत अंजुमन बनाई ना, उसने रोका ने आए। लेकिन ये मसला है ना कुफर वाला, इन्होंने कि दूए ने कुफर ने फतह बाद ने 1914 में जो मामले ना, ये जब कुफर का मसला है गैर अहमदियन है, इन्होंने दरमियान इतनाजा जी बड़ी मालूमात उनके इतनाजा इस वास्ते बनया कि मिर्जा कादियानी ने तो मुनकर काफर है ना, तो मिर्जा कादियानी नबी है, गैर नबी ना मुनकर काफर नहीं होना। इन्होंने दरमियान तनाजा है, ये नबूवत दी दलील है। अच्छा, मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਰੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, आपस नहीं लगे। मसला कुफर इस्लाम जड़ा ना दरमियान है, एक नबूवत दी दलील के तौर ते इन्होंने दरमियान। अच्छा अच्छा। तो मिर्जा कादियानी जो मुनकर है ना, जे कदे ओ काफर साबित होवे ना मिर्जा कादियानी तरीरा चू, तो मिर्जा कादियानी नबूवत साबित हो जुनी है। हाँ जे कदे मिर्जा कादियानी तरीरा चू काफर नहीं साबित होना, तो मिर्जा कादियानी नबूवत नहीं साबित होनी। एक कलमा तो फसल मुसीबत का जोर की वजह से है कि खुदा की पाक जमात के 2 टुकड़े कर दिए।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ? दो टुकड़े जी हुए ना भी एक फरीक आना है मिर्जा कादियानी मरने ले इनकार करने ले जेड़े नो काफर नहीं नो दुआ कहंदे ओ काफर होन उसी तरह काफर होन जिस तरह ईसा अलैहि सलाम ने इनकार करने ले मूसा अलैहि सलाम ने इनकार करने ले काफर होन। लाहौरी कहंदे ने कि काफर उस तरह ने नहीं ने ये काफर नहीं ने मिर्जा कादियानी नबूवत ने उस स्टेटस ते है ही नहीं कि इस दे इनकार दुए तो बंदा काफर होवे। नहीं, ये बात ठीक है कि लाहौरी हमारी तकफीर नहीं करते, लेकिन लाहौरी मुख्ती हैं, क्योंकि लाहौरियों ने जिसको अपना मुजद्दद माना है, मसीह मऊद माना है, जब उसने तकफीर कर दी है और सराहत के साथ कर दी है, वो इस हवाले को भी नहीं मानते जो मलफूजात का हवाला है ना, जिसमें उसने लिखा हुआ है, वो डायरी का हवाला है कि मुझे खुदा ने बताया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची है और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नज़दीक काबिल मुआखज़ा है। ये डायरी का ही वाला है ना, इसको वो लाहौरी नहीं मानते। एक बात। दूसरी बात ये कि लाहौरी हमारी तकफीर, मुसलमानों की तकफीर नहीं करते और कादियानी हमारी तकफीर करते, लेकिन आपस में ये दोनों एक दूसरे की तकफीर करते हैं। अल फजल अखबार का हवाला नहीं आपस में करते हैं अमर भाई, वो मुझे उससे कोई इतराज नहीं, यहाँ पर में एक दूसरे की तकफीर करते हैं, लेकिन शाह साहब ने जो वाला पढ़ा ना ये आपस की तकफीर का नहीं है, किबला की तकफीर की बात हो रही है यहाँ पर। मेरा मसला, मैंने ये बात उजागर किया कि ये शाह साहब ने वाला पढ़ा ना ख्वाजा कमालुद्दीन वाला, ये तकफीर अहले किबला की जो तकफीर के दरमियान मसला है ना उसकी बात हो रही है, ना कि एक दूसरे को काफर कहने की। एक दूसरे को तो बड़ी जूतियों में डाल बटी है बाद में जाकर ये तो प्यार में सुलह खुला बड़ा कुछ निकलता है उसमें से। जी जी जी, नहीं वो तो ठीक लेकिन है। इब्तिदा में जो मसला था ना 1914-15 में, वो इनका आपस की तकफीर बाद में इनकी चली है। इब्तिदा में एक दूसरे को ये अहले किबला की तकफीर पर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, मिर्जा कादियानी को नबी साबित करने के चक्कर में थे दोनों। एक नबी नहीं मानता था, दूसरा साबित कर रहा था, इनके आपस के दरमियान ये झगड़ा था। असल बात यह है कि जो इनके दरमियान इख्तलाफात थे ना, लाहौरियों और कादियानियों के इख्तलाफात, ना सिर्फ तकफीर पाई जाती थी बल्कि इतने शदीद इख्तलाफात थे, जिस बंदे को उन इख्तलाफात का पता है उस बंदे के सामने मिर्जाई मुसलमानों की लड़ाई या मुसलमानों के एक दूसरे पर फतावा जात को बैठ के पढ़ नहीं सकता। आपने अपनी आंखों देखा हाल, मेरा ख्याल है देख ही लिया 2-3 दफ़ा, तलत की बराड पे, सैनी साहब की बराड पे। मैंने उसको कहा सलीम मीर को भी, जो तुम फतवा अपनी बराड पे बैठ के पढ़ के सुनाते हो कि अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने फतवा दिया था मौलाना कासिम ननोतवी पर या देवबंदियों बरेलवियों वाबियों पर, वो मेरे सामने पढ़ के सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सैनी साहब ने कहा ये बात मुमकिन नहीं है, जो आप चाहते हैं ये नहीं मुमकिन। तलत साहब ने पूछा हाँ भाई सलीम भाई बात करोगे? कहता है नहीं है नहीं मैं करनी। इसलिए नहीं करता, उसे पता है कि जितना गंद कादियानी और लाहौरियों के बीच में है वो सुन नहीं सकता। मुसलमानों का अगर वो फतवा पढ़ के सुनाता है, उसका बेहतरीन जवाब यही है कि मुसलमानों ने अगर एक दूसरे के ऊपर किसी ने फतवे लगाए हैं तो जितने फतवे तुमने एक दूसरे पर लगाए इतने मुसलमानों तो नहीं लगाए। तुमने तो अपने मुंह बोले नबी को नहीं बख्शा। लाहौरियों की अखबार का मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया था हवाला, मोटी सुर्खी ऊपर लगी हुई है प्यामे सुल्लाह के ऊपर कि मिर्जा कादियानी के बेटे ने अपने बाप को मुनाफिक साबित कर दिया है। खलीफा इस तरह के कोई लफ्ज लिखा हुआ है कि इस बनावटी खलीफे ने मसीह मऊद को मुनाफिक साबित करने की कोशिश की है। यानी जिस बात से हमारा मसीह मऊद इनकार करता रहा वही दावा उसके जुम्मे लगा दिया है और उसको मुनाफिक साबित कर दिया है कि वो झूठ बोलता था मौलवियों के सामने और कहता था कि मैं मुदय्य नबूवत नहीं हूँ। अगर वो वाक़अतन मुदय्य नबूवत था तो उसने इनकार क्यों किया? मुफ्ती साहब शायद आपको पता होगा इस बात का कि जब 1891 में इस पे फतवा लगाया ना, तो ये बार बार आप 1891 से लेकर 1898-99 तक की तहरीरें उठा के जितनी देखेंगे, महमतुल बुशरा वगैरह या ये बाद में जितनी किताबें छपी हैं तरियाकुल कुलूब तक, जितनी किताबों में मिर्जा कादियानी ने नबूवत के मुतल्लिक सवाल हुआ उसने मुतलकन इनकार किया है 1891 से लेकर 1901 तक कि मैं मुदय्य नबूवत नहीं हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाले पर मैं लानत भेजता हूँ, उसको मैं मुसलमान कज़ाब का भाई समझता हूँ। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन की आयत आ जाने के बाद कोई नबूवत का दावा कैसे कर सकता है?
हमामतुल बुशरा में आपने खुद कई दफ़ा हवाला पढ़ के सुनाया है। ये जो वो मुतलकन इनकार करता था ना, लाहौरी कहते थे कि भाई मसीह मौत तो मुतलकन इनकार करता रहे नबूवत के दावे से, तुम कैसे उसको नबी बनाते फिरते हो, तुम तो उसको मुनाफिक साबित कर रहे हो। फिर इसने ये तवील की थी इनके 2 नंबर खलीफा ने कि बात यह है कि हमारे मसीह मौद को पहले पता ही नहीं चला कि मैं नबी बना हुआ हूँ। 1898 तक जब तक उसने तरियाकुल कुलूब नहीं लिखी वो यही कहता था कि नबी वो होता है जो उम्मत बनाए, नबी वो होता है जो शरीयत लेकर आए। पिछले हफ्ते 4-5 रोज पहले, अब हफ्ता हो गया बाइकाट, या पिछले हफ्ते ना वो अताउल मनान के साथ बात हो रही थी, जो हमारे सईद जफरुल्लाह शाह साहब को भी कॉल किया करता था डीएम डिजिटल पे। वो कहता है जी कि तुमने हमें अलग उम्मत क्यों कहा है। मैंने कहा ना मिर्जाई अलग उम्मत हैं, मुसलमान अलग हैं। कहता है ये ज़्यादती है, तुमने हमें अलग उम्मत क्यों कहा है। मैंने कहा भाई 1901 तक तो आप भी ये मानते थे कि जो नबी होता है उसकी उम्मत अलग होती है। 1901 के बाद अगर आपने अकीदा बदल लिया, इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं, हम तो आज भी उसी अकीदे पर हैं। इस मामले में जिस अकीदे पर आपके मिर्ज़ा साहब थे 1901 तक, मेरा आज भी वही अकीदा है कि नबी वो होता है जिसकी अपने, जो अलग उम्मत बनाता है, जो अपनी अलग कौम बनाता है, उस पर अलग इल्हामी कलाम होता है। ये आप अलग उम्मत हैं, अगर आपने उसको नबी माना है तो आपका फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल वो कहता है, बेटा उसका कहता है कि तरियाकुल कुलूब लिखने तक अब्बा जी को यही ख्याल था कि नबी वो होता है जो पिछली शरीयत को मनसूख करे या कोई नए अहकामात शरीयत के पेश करे और अलग उम्मत बनाए। लेकिन तरियाकुल कुलूब कहता है बरज़ख है, यानी बीच में तरियाकुल कुलूब से पहले वाली इबारतें अलहदा हैं, बाद वाली जो किताबें हैं एक गलती का ज़ाला से लेकर चश्मे मार्फत तक ये अलहदा हैं। कहता है इनके जो हवाले हैं इनमें मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया है लेकिन पहले इनकार किया है। इसमें उसने ये तवील की है उसके 2 नंबर इनके खलीफा ने कि तवील इसकी ये है कि हमारे मसीह मौद को पता ही नहीं चल सका कि नबूवत की तारीफ क्या होती, नबी क्या होता है। 1901 में जब उसको पता चला कि नबी वो भी हो सकता है जो भले उम्मत ना नई बनाए, भले शरीयत नई ना लेकर आए, भले नए अहकामात ना लेकर आए, लेकिन सिर्फ मुकालमा और मुखातबा, कसरत मुकालमा और मुखातबा से अगर कोई मुशर्रफ हो जाता है तो वो भी नबी हो सकता है। ये पता चला 1901 में, तो उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। तो कहता है कि 1901 में मसीह मौद ने अपने नबूवत के अकीदे में तब्दीली की है। ये तवील करके उसने दी थी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को कि इससे पहले की जो किताबें हैं उसमें उसने इनकार किया। वो कहता था तू तो मुनाफिक साबित कर रहा है मसीह मौद को, वो तो इनकार करता था नबूवत के। देखो यहाँ इनकार किया, यहाँ इनकार किया, यहाँ इनकार। फिर इसने उन किताबों को लहदा कर दिया 2 नंबर इनके खलीफे ने कि वही पहले वाली किताबें लहदा हैं, बाद वाली लहदा हैं। पहले उसने इनकार किया, बाद में इकरार किया है। वक्त मसला ये था कि उस पर ये बात खुली 1901 में है। लेकिन मिर्जायत गरीब की वो चादर है जो सर पर लें तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपे तो सर नंगा हो जाता है। मुसीबत तो ये है ना। अब इसने ये पेंचर तो लगा दिया है इनके 2 नंबर खलीफा ने कि भाई हमारे मसीह मौद ने अपने ख़त्म नबूवत के कीदे में तब्दीली कर ली थी। लेकिन अगर एक गलती का अजाला पढ़ें तो वो तो कहता है कि मैंने कीदे में तब्दीली नहीं कोई की। एक नौजवान है मेरा मरीद, तो उससे किसी ने पूछा है कि भाई आप जिसको फॉलो करते हैं वो तो मदई नबूवत है। तो मेरे मरीद ने ये जवाब दिया है कि नहीं नहीं, उनका नबूवत का दावा नहीं है, बल्कि वो तो इससे मुतलकन इनकार कर रहे हैं। कहता है ये जवाब गलत है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है ये जवाब गलत है। पूरा जवाब ये है कि इस तरह की नबूवत से मैंने कभी इनकार नहीं किया जो गैर शरी हो और मतलब नई कोई शरीयत ना हो और ज़िल्ली बरूज़ी किस्म की नबूवत, इससे मैंने कभी इनकार नहीं किया। जहां जहां मैंने इनकार किया है नबूवत के दावे से, इन मानों में किया है कि मैं कोई नई शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूं। इससे साबित हुआ कि वो ये कह रहा है कि मैंने अपने अकीदे में तब्दीली नहीं की। मेरी बात समझ गए ना। बेटा कहता है अकीदे में तब्दीली कर ली है। अगर बेटे का पंचर चेक करें तो उधर दूसरी तरफ उसका बाप खड़ा है, वो कहता है इस नबूवत के दावे से तो मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। जहां जहां मैंने इनकार किया वो तो मैंने इन मानों में किया है।
तो मुसीबत इनके लिए ये है कि अगर उसकी मानते हैं तो फिर उसकी नहीं सही होती, बेटे की मानते हैं बाप की गलत हो जाती है, बाप की मानते हैं बेटे की गलत हो जाती है। बेटे ने तो अपना सर ढांपा है उन ओल्लों से जो ओल्ले पड़ रहे थे सर पे, जो लाहौरी पथराव कर रहा था लाहौर से और कह रहा था कि तू मेरे मसीह मौत को मुनाफिक साबित कर रहा है, शर्म कर। वो तो नबूवत के दावे से इनकार करता रहा है। ये वो निकाल के दिखाता था 1901 के बाद की तहरीरें। वो कहता था कि ये तो वो है तो ऐसे ही ना, जहां इकरार किया है साथ ही हुसैनी साहब कहते हैं मिर्जा साहब ने जहां नबूवत का दावा किया है ना, अगले ही फिक्रे में दावे से बाहर निकल गए हैं, अगले ही फिक्रे में इनकार भी कर दिया है। इस तरह का ही दावा गोलमोल सा किया होता था। बहरहाल नबूवत का दावा बहरहाल सराहत के साथ मौजूद है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। अबुल मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह जब इनकी लड़ाई देखी ना कादियानियों की लाहौरियों की, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इनके दरमियान जो लड़ाई है हमारी नज़र में लाहौरी मुख्ती हैं और कादियानी मुसीब हैं। मिर्ज़ा कादियानी का नबूवत का दावा सराहत के साथ मौजूद है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी गलत बात कही है, इसको पता ही कौन ना, मिर्ज़ाइयत का तो नॉलेज नहीं है ना मसूफ को। कहता है कि वो दावा नहीं है, पता नहीं वो क्या नाम है उनका जी, वो गामदी साहब, उन्होंने भी बड़ी तहकीक की है। तो वो हाँ जी, वो कोई गोल मोल सा दावा किया है तो कोई वाजे नहीं है, बिल्कुल गलत कहा है। गोल मोल दावा नहीं है, सराहत के साथ उसका दावा मौजूद है। ये ठीक है कि वो जहां भी दावा करता था उसका साथ वो पिछला दरवाजा खोल, चोर दरवाजा भी खुला होता था, लेकिन नबूवत का दावा उसका सराहत के साथ मौजूद है। ये बिल्कुल सही बात है। अहमद भाई, बात वो है ना कि बड़े मिर्जे को बचाने के लिए अब छोटा मिर्जा आ गया मैदान में। ये जाहिल है, इसको पता ही कोई नहीं है, इसको अच्छा जुबान ही नहीं खोलनी अहमद भाई चाहिए। देखें बात और सुने, लाहौरी भी इनकार नहीं करते दावे से, तनाजा हाँ और जी, है। यही बात मैं करने लगा था कि लोरी भी तो नबी मानते हैं। आमिर नजीर भाई उनके तनाजा और है शाह जी इसमें। हाँ जी, तनाजा कुर्सी का तनाजा था ना जी। नहीं, कुर्सी का तनाजा नहीं है ना। लाहौरियों का मुद्दा ये है कि 1900 तक की ज्यादा जिंदगी है मिर्जा कादियानी की। जो ये रसूल का लफ्ज देखते हैं नबी का, वो कहते हैं जिस तरह उधर उसने मजाजी मानों में अपने लिए इस्तेमाल किया, यही मानी यहाँ भी है। ये कहता है यहाँ की मानी है। तनाजा इनके बीच में ये है, मोहम्मद अली लाहौरी ने पूरा रसाला लिखा है मेरी तहरीर में नबी का लफ्ज। वो कहता है मैं उसी तरह नबी अब भी कहता हूँ जिस तरह दीगर बुजुर्गों के लिए लकब इस्तेमाल होता है नबी, मजाजी मानों में लुगत के लिहाज से। उसने पूरी तहरीर लिखी है, 1917 की उसकी तहरीर छपी हुई है। तो वो कहता है मुझे जिसने सामने हवाले रखते थे ना, तू नबी कहता था, अल फजल वगैरह में छपे हुए हैं ये बातें। तो कहता है मैं कब मुनकर हूं नबी कहने से, लेकिन मैं जिन मानों में कहता हूँ उन्हीं में लो तुम। तो मैं अक्सर सोचा करता हूँ क्या था फिर ये मुकफ़ात अमल है। मतलब अगर कुर्सी का रोला भी नहीं था तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या रोला हो सकता है इनका आपस में? रोला कुर्सी का होता ना अगर शाह जी, तो फिर एक बंदा होता उसका दावेदार, दो बंदे मुखालिफ दावेदार होते कुर्सी के। दूसरी तरफ वो कहते थे कि ये मामलात अंजुमन के हाथ में जाने हैं, वो फैसला करेगी। नहीं वो ही ना, ये तो नुसरत जहां बेगम वो बड़े बशीरे को बनाना चाहती थी, कुर्सी पे बिठाना चाहती थी, तो इन्होंने मोहम्मद अली को बिठाना चाहा। मैं तो समझता हूँ यही था इनका तनाजा, और तो कोई नहीं। क्या अकायद तो दोनों के एक हैं, सब कुछ सेम है। नहीं, एक मिनट मुझे बात करने दे, फिर मैं बिजी होने लगा हूँ। बात यह है कि जो नबूवत का ये जो झगड़ा तो इनका ठीक है, कुर्सी का ही था, ये बात ठीक है, लेकिन नबूवत के मामले में और उसके नबूवत के दावे के मामले में लाहौरियों ने ऐसी ठोकर खाई है कि लाहौरी एक मिनट भी आपके सामने नहीं टिक सकते। वो 35 को जानते हैं आप? 35 जिसने वो किताब लिखी हुई है, चक 35 वाला, रवा का रासपुटीन वाला, जी 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 जी, उसका दमाद है रशीद जंगीरी। उससे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई है 2-3 साल पहले। जब मैंने उसको रगड़ा दिया है ना नबूवत के दावे पर, तो उसने यहाँ मेरे पास उसकी ऑडियोज महफूज है, मैं किस दिन आपको सुनाऊंगा, मैंने महफूज की हुई हैं। वो मुझे कहा करता था अगर नबूवत का ये मानी है, अगर नबूवत की ये तारीफ है, तो मैं मिर्जा साहब को नबी मानता हूँ, और अगर ये तारीफ है तो फिर मैं नबी नहीं मानता। वो है इसी तरह का पागल सही है वो भी, रशीद जंगीरी भी। तो जो रशीद जंगीरी है वही साकल में लाहौरियों की बात है जो वो बात कर रहा है। यानी नबूवत की तारीफ अगर आप कुछ और करें तो उसका नबूवत का इकरार है कि हाँ ये मुदय्यन नबूवत था,
अगर तारीफ उसकी कुछ और करें तो कहता है हम उसको मुद्दई नबूवत नहीं मानते, नबूवत का दावा नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि लाहौरियों को शदीद ठोकर लगी है इसके नबूवत के दावे को लेकर। कादियानी इसमें मुसीब हैं, उनको ठोकर नहीं इस मामले में लगी। मिर्जा कादियानी का नबूवत का दावा सराहत के साथ मौजूद है। हाँ, नबूवत की ये कह लें कि उसने एक नई किस्म इजाद करके उसमें उसने अपने आप को डाला है। उसने उस तरह का नबूवत का दावा नहीं किया जिस तरह अंबिया पहले होकर इस दुनिया से गुजरे, उस तरह का दावा उसका नहीं है। यानी पहले तो दो ही किस्म के नबी होते थे, या साहिब शरीयत या ऐसे जो पिछली शरीयत की इत्तबा के लिए, उसकी तबलीग के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे कई नबी आए हैं, रवायात मिलती हैं। दो ही किस्म के नबी। उसने एक तीसरी किस्म नबूवत की इजाद करके अपने आप को उसमें उस कैटेगरी में डाला है। लेकिन ये कहें कि नबूवत का दावा किया ही नहीं, ये गलत बात है। लिहाजा वो लाहौरी उस मामले में ठोकर ज़्यादा हैं शदीद, और कादियानियों का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नबूवत का दावा उसका सराहत के साथ मौजूद है। झगड़ा इनका कुर्सी पे ही हुआ है, लेकिन ये जो अकायद पे इनके इख्तलाफात हुए ना, नबूवत के दावे पर जो इख्तलाफ इनका हुआ है लाहौरियों का और कादियानियों का, इसमें कादियानी हक बजाना भाई, यही मुझे कहना था। अच्छा, गुजारिश ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी अर्जी पेश करूंगा कि ये जो है कि गैर तशरीई नबी, मिर्जा कादियानी तो वाज़े तौर पे कहता है कि मैं साहिब शरीयत नबी हूँ, नई शरीयत लेके आया हूँ। वाज़े तरीन अल्फाज हैं। वो कहता है साहिब शरीयत नबी होता कौन सा है? उसी को साहिब शरीयत कहते हैं कि जिसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी हो। तो मेरी वहियों को देख लो तुम, मेरी वहियों के अंदर अमर भी है और नहीं भी है। तो वो तो वादे तौर पे कहता है मैं साहिब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं। तो रही बात ये कि नबूवत कौन सी किस्म को ये मसरूरी ग्रुप मानता है, नबूवत की तो इन्होंने कोई 70 किस्में बना दी हैं, जबकि शरीयत इस्लामिया के अंदर तो ऐसी नबूवत की कोई किस्में है ही नहीं, कोई तकसीम नहीं, कोई कुछ नहीं। सीधा साधा हमारा दो टोक दीन है, दीन इस्लाम है। तो इसमें ऐसी जनाब पूछलों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हर किस्म की नबूवत का दरवाजा मुनकता हो गया, बंद हो गया। हाँ जी, हर किस्म की नबूवत, वो चाहे कोई सी भी हो, वो तशरीई हो, गैर तशरीई हो, हकीकी हो, मसीली हो, हाँ जी, वो मुहद्दस की सूरत में हो, या जो सी सूरतें भी बनाई हुई हैं इन्होंने, तो सब सूरतें बंद हो चुकी हैं। रही बात ये कि मसीह मऊद के लफ्ज पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। मसीह मऊद तो कादियानी भी मानते हैं और कादियानी लोरी भी मानते हैं मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद। अब मसीह मऊद क्या है? मसीह मऊद ऐसा मसीह के जिसके आने का वादा किया गया है। और वो कौन है जी? वो है मसीह ईसा इब्ने मरियम। और मसीह ईसा इब्ने मरियम कौन है? वो है नबी। ओ भाई, जब तुम मसीह मऊद कह रहे हो तो ये तो तुम दावा कर रहे हो कि मिर्जा कादियानी नबी है। भाई, मसीह मऊद या मसीह मानना, मसीह मऊद मानना, यही तो नबूवत है, यही तो नबूवत का दावा है। अब इंजीनियर मिर्जा की भी बात हम करते हैं, तो जिस जगह पे इसने कहा है ना कि मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा को नहीं किया, तो उसकी कोई दलील नहीं मिलती, तो साथ ही वो ये कहते हैं हाँ मसीहियत का दावा उसका मिलता है, मसीह मऊद होने का दावा मिलता है। तो उसी टाइम भी मेरे ज़हन में ये चीज आ रही थी, यार मसीह मऊद होने का दावा ही तो ये दावा नबूवत है, और कौन सी चीज है? तो ये बात है जी। इसके ऊपर मजीद कुछ कहना चाहें तो, या मेरी मुफ्ती साहब, ये जो आपने हवाला दिया है ना उसके शरी नबी होने का, ये भी तो समझो कि शरीयत है क्या चीज़। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का ही नाम शरीयत है, और वो मेरे इल्हामात में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं ना। असल में इसके आगे पूरा जो हवाला है ना, इसके आगे उसने इसका इनकार भी किया हुआ है, यानी यहाँ इकरार करके साथ ही उसने हल्लमी भी पाई हुई है। अगर ये कहो कि शरीयत का कोई नया हुक्म लेकर आने वाला, तो ऐसा मैं नबी नहीं हूँ। हाँ, इस लिहाज से मैं शरी नबी हूँ, या ये कह लो कि
मेरी वही में, क्योंकि इनकार भी है, नहीं अनिल मुनकर भी है और अमर बिल मारूफ भी है, तो इसी का नाम शरीयत है। इस लिहाज से वो अपने आप को शरी नबी ही कह रहा है, बात ठीक है। लेकिन आगे उसने इसकी एक बातल तवील भी की हुई है साथ ही अगले ही सफ़े पर, और कहा हुआ है कि अगर ये कहो कि ये कोई नई शरीयत या नए अहकामात हैं तो इस तरह के दावे को मैं गलत समझता हूँ और हराम समझता हूँ, और ये मैं जायज़ नहीं समझता। इस तरह की बातें उसने वहाँ आगे लिखी हुई हैं। इसलिए ये हवाला जब भी कोई बंदा दे ना, मेरे इल्म में है, यही तो मसला है कि ये वही बात है जो आप पहले फरमा रहे थे कि मिर्ज़ा कादियानी ने दोनों दरवाजे रखे हैं। हाँ जी, वो दोनों दो बातें करते हैं। दुनिया का हर चीज के अंदर उसके दो दावे हैं। कहता है अल्लाह के सिवा और कोई अल्लाह नहीं है, साथ ही कहता है मैं अल्लाह भी हूँ। अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, ये भी दावा उसका मिलता है। साथ ही कहता है अल्लाह का मैं बेटा भी हूँ, मुझे वही नाज़िल हुई है इस्मा वाला दी। साथ ही अल्लाह की बीवी कोई नहीं है, ये दावा करने के बाद खुद खुदा की बीवी होने का भी दावा कर देता है। साथ ही कहता है नबूवत का दरवाजा बंद है, अगले सफे पर ही कहता है नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये पता नहीं, ये ही है इसका मसला कि ये अभी जो आप कह रहे हैं कि साथ ही वो कह रहा है कि तशरीई मैं साहिब शरीयत नबी हूं, साथ ही कहते हैं नहीं साहिब शरीयत नहीं हूं। यही तो इसके मसले हैं कि भाई एक जगह से पकड़ोगे तो वो दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। ये हमारे यहाँ ये होता है कि यहाँ पंजाब के अंदर चरसिए मवालिये रोडों के ऊपर जेब कतरे घूम रहे होते हैं। उन्होंने ना गलमा अपना जो होता है ना गिरेबान खोला होता है, बटन सारे ओपन रखते हैं। उसकी एक वजह मुझे किसी ने बताई कि ये क्यों ये गिरेबान खोल के रखते। उसने कहा, जिससे मैंने पूछा, उसने कहा कि ये शादी होता ये है कि जब इनको पता होता है कि कोई आके पकड़ेगा, जब पुलिस वाला या कोई और बंदा इनको आके पकड़ेगा तो यकीनी सी बात है उसने कमीज से पकड़ना है। जब कमीज से पकड़ेगा तो ये गिरेबान के अंदर से सर निकाल के कमीज उसके हाथ में छोड़ के भाग जाएंगे। ये मिर्ज़ा कादियानी ने असल किया है, वो गिरेबान खोला हुआ है, गिरेबान साथ खोल के रखता है। वो एक चोर दरवाजा खोल के रखता है। कादियानियों को अगर हम किसी चीज के इस बात के ऊपर कोई दलाइल देते हैं तो वो साथ ही उसके नफी के दलाइल देने शुरू कर देते हैं, वो चोर दरवाजे वाले कि ये देखो ना वो उसने तो फलां जगह पे ये कहा हुआ है। ये असल में ये प्रॉब्लम है इसकी। जी आमिर भाई। और कोई दोस्त बात कर ले, आमिर भाई मसरूफ है लगता है। अच्छा शाह साहब, 19 सितंबर 1915 का फजल, तो उसको जरा खोल ले, मैं आपको सफा नंबर बताता हूँ उसका। हाँ जी, कौन सा? 19 सितंबर 1915। 1915 जी, मैं सफा नंबर 1 मिनट। 1915 का कौन सा महीना? 19 सितंबर है, 19 सितंबर 19। जी जी, सितंबर 19 आ गया शुमारा जी। सफा सफा 6 है इसका। सफा 6 आ गया जी। इसके देखिए खुतबा जुमा की हडंग लगी होगी, इसके आखिरी कॉलम में ऊपर में लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी को शक्की मुजाजी किस्म का नबी कहने वाले को मैं काफिर करार देता हूँ। नहीं, खुतबा जुम्मा जहाँ पे लिखा है ये वाला कॉलम में जो है ना, इसका आखिरी कॉलम सफा 6 का आखिरी कॉलम के ऊपर आखिरी कॉलम, तीसरा कॉलम। अच्छा, हाँ। तीसरे कॉलम के नीचे सबसे ऊपर में लिखे। अच्छा, सबसे ऊपर हजरत मसीह मऊद ब मुजबे हदीसे सही हकीकी नबी हैं। ये बिल्कुल जैसे ही नबी हैं जैसे हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। हाँ जी, ये बात है जी हजरत जी, ये बात तो है। आगे वाला पढ़े ना, के बड़े दलाइल हैं जनाब, बेशुमार दलाइल हैं। हाँ। तो ये मतलब वो एक जगह पे इनकार कर देता है, एक जगह पे उसका इकरार कर रहा है। बंदा की करे यार। हाँ जी, यहाँ जो ये पंचर लगाते हैं ना, मिर्जा कादियानी उम्मती गैर मजाजी की मजाजी गैर हकीकी
किस्म का नबी था, तो ये सारे पंचर इसने उधेड़ दिए हैं यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सारे पंचर इसने उधेड़ दिए हैं। वो तो क्या नाम है नईम भाई, कई जगह पे इस किस्म की बात, कई जगह पे, कोई एक जगह नहीं है, बड़े इसके और भी हवाले बड़े हैं। लेकिन कादियानियत है कि वो मानने का नाम ही नहीं लेते। नहीं भाई, मनना नहीं है सब। शायद यही तो बात है, हम इनको कहा करते हैं तुमने ना मिर्जा कादियानी का दीन रखा है, ना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का दीन रखा है। तुमने एक नया दीन गाड़ लिया अपना। हाँ जी जी जी, एक अलग दीन गाड़ लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक अलग दीन पेश करते हैं जिसमें तू भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ, गलत दोनों नहीं है। ऐसा दीन के मानना नहीं है, मानना नहीं, मनना नहीं ऐसी। हाँ, तो अक्सर इनको कहा करता हूँ अपने भाइयों को मैं कि मिर्जाइयां माल्टे मनवाने से पहले, चोरी मनवाने से पहले माल्टे मनवाने पहले भी तुसां दीन है वे जो तुसी पेश पे करने वो है नहीं है। हाँ तुसी कहने हो ਅਸੀਂ किसी कलमा गोवा काफर ना आने तुसा ने वडेगा आने भाਵੇਂ कलमा गोवे भाਵੇਂ जड़ा भी है। मिर्जा कादियानी जब मुनकर है तो काफर तो पक्का है, काफर दार इस्लाम तो खारिज है। और दसो कि नहीं मनी जुले कलमा गो तो सिले भी है ना। लेकिन एक ये नईम आवान भाई क्या ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮੁੰਨਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਦਿਫਾਈ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆ ਆਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਆਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਿਹਤਰੀਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। हाँ बिल्कुल, उससे कोई इतराज उठे तो उसका जवाब दे सको तुसी, तुहाडे कोल दिगर तरीरा मौजूद होन, किसा मतलब जो तुसां अखज़ कीता वो वही बनदा, कोई और नहीं बनदा। जी जी बिल्कुल है। बस ये चीज ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ज़ियार रसूल भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਠੱਤਾ ਸੋ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਗਾਈ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ज़ियार रसूल ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੋਗੇ ਹੈ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਬਸ। और नहीं, असां उस्ताद आखने होने कि बंदा जितना भी मर्जा चंगा काम पे करे ना, जेकर तुसी सब थोड़ी तारीफ कर छो तो कमे तू हट वेंदा, उसा चौक लाजमी लाई रखो। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ चौक लाजमी सा रहनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਤ बिल्कुल कन सिकन होने ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਬੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल खाक पाने रहने, वेला नहीं रहने देने शाह जी, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਾ, वेला नहीं रहने देने, किसी ने तवे लाई रखने, सुस्त ना होने, हरकत च ना होने। बिल्कुल सही। ठीक है अमर भाई, मौका दो। अच्छा यार आप हजरात तशरीफ रखो, मैं जरा जावांगा, ठीक है जी, अस्सलाम। और दीगर भाइयां भी मौका दो, असा ही बोलना रहना फिर आखसन ने सब ठा रखने बराड़ उत्ते, साड़ा होश पता नहीं किधर चला गया, रोटी खाने लगा सी।